sir, let the student join us and we will start. So, with your kind permission, I want to start. Sure, sir, please. Okay. Uh, Thanks everyone. On behalf of LCBU, I welcome to the Captain Dr. Amit Kumar Sharma sir, a captain of the Indian Territorial Army and the managing director of Bhagwati Ayurveda, as a speaker in the today webinar on the topic of stress management with Ayurveda in current scenario. Currently, he is working as an associate professor at Bhagwati Ayurveda and Panchkarma Research Center. He has more than 14 years clinical experience, more than 7 year experience of teaching experience. He got several awards and foreign assignments. Without to delay the seminar in the today webinar, I would like to call Dr. Amit Kumar Sharma sir to start the session. Thank you very much, sir. It is my great pleasure to be amongst you, and I thank the Gyan Vihar School of Pharmacy for giving me this platform to share my views over the prevailing conditions and the associated stress which we are going through, and of course the remedies which Ayurveda has to say how to fight the stress. Just before starting the lecture, I would like to bring about few certain facts that irrespective of the time period, whether we are focused on post-COVID times, the stress has been an integral part of our humanity. As I would like to just take a brief insight that as long as human being has been on earth, stress has been an integral part of his lifestyle. In Ramayana, stress was there. You can very well witness a father being separated from his son, then a husband separated from his wife, wife separated from husband. So several kinds of stress has been all the time in our history also, and we have, I would say that it is a irony that human beings excel in stress. We have excelled in the times of stress. So it is not the only factor कि हम जब stress में होते हैं, when we are under stress, so we commit mistakes, we are exposed to negative things when we are under stress. It is a human tendency that we then whenever we are under stress, we perform to we strive hard for excellence, and probably that is the reason we try to do the things better. But the only factor required for that is a stable mind. If a person has a stable mind over his shoulders, then he would be centrally focused. He would be able to appreciate what is right and what is wrong, and then he can make good decisions, right, timely decisions. And these are the only crux of stress management. So I'll be taking a few presentations, few slides, which will be beneficial for your viewers today. So I'll be now sharing my screen with you. And for that, I would just like to confirm that whether you are all able to see my screen in full screen mode or not. Yes. Is it visible, Yes, sir? sir. Yes, sir. Okay. So that means I'm audio and visually all clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So before starting further, I would like to say that today's session will be conducted in three parts. Part A will be dealt by causes of stress, then part B, effects of stress on the body and mind, then how to manage the stress. As I am in profession of medicine also, I'm a practicing doctor, and I am Indian Army officer also. So when I see those two worlds, it has great similarities between the two worlds. When I say this, that means that we have to take decisions in a flash of seconds, whether it is right, whether it is wrong. We have to make our decisions in a very short span of time. So the reason why I said this is that this is also a part of stress management, where we are tested, trained, and then we practice it on a daily basis. That stress is an integral part of our daily life,
but then how do we cope it? How we cope with stress? So that technicalities I'll be discussing with you. And for that, first some theoretical part, that what are the probable causes of stress? हमें stress होता किस बात से है? Now all the audiences which are listening to me, they are of different age groups. Some of them are students, some of them are in the third decade, maybe fourth and fifth decade. So the causes of stress can be different causes at different age span of life, because at a level of 20-22 years old, the effects and the causes of stress can be different. Then comes the middle age, their level and causes and effects of stress can be something else, that can be career oriented. Then it can be in the third decade of life, where performance pressure is there. We have to excel in our careers, we have to prove ourselves, we have to listen to our bosses also, we have to manage our families also. So levels and types of stress keep on changing, but one thing remains, that our head remains the same, which is the poor head has to bear all the stress throughout the life. So briefly, what are the major causes of stress? As I said, in adults, they can be of these many varieties of various reasons. That is work pressure, job pressure, any one losing in the family, then relationship challenges. Now, relationship challenges is a very tedious topic to discuss, and I'm sure my young friends who are enjoying the lockdown era of college in their homes, they have different kind of relationship challenges these days. So because when me and Patak sir were enjoying our college days, those college days are different from what we are witnessing now, because we are not meeting our friends daily, we are not chatting them with them, we are not enjoying a cup of tea in our canteens. So we have different challenges. Of course, relationship does not only mean boyfriend or girlfriend, but then a relationship also means a boss and a employee relation, then your relationship with your peers, your relationship with everyone around you. So there are lot many challenges, at particularly in these corona times, where you are not frequently meeting people, and because of this, a lot many people are losing their jobs also, their employment has gone down. So money also is a big factor for stress. And ironically, अगर मैं किसी छोटे बच्चे से भी पूछता हूँ, या कोई मुझसे मिलता है, तो कि भाई क्या क्या बेटा क्या प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे को ये टॉय नहीं मिला, आई एम नॉट एबल टू गो टू द पार्क, आई एम नॉट गेटिंग टॉयज, आई एम नॉट गेटिंग चॉकलेट्स. So see, a small kid can also have a level of stress because he is not able to play. When he grows up, the small kid, then the social pressure in the school that develops. Why? Because then she would ask for a new dress, maybe new pencil box, maybe new matching shoes, and subsequently then exam pressure, study pressure. These days everyone is stuck to the devices, gadgets, online classes, online exams. So these are all various kinds of stresses which we are going through our lives each and every day, each and every decade of our level of our lives, in whatsoever profession we are in. Now, what could be the reason of this stress? I have written here Ayurveda's algorithm of stress, and I would try to explain this in a retrograde manner. The last box is the resultant, is the outcome, is the final entity which we are facing, which is stress. But why this stress happens? So if I'll explain this in a retrograde fashion, it will be more meaningful, and you will be really understanding it, why I have chosen this retrograde methodology of making you understand that why the stress arises. So the final outcome is known to you, that it is stress. Okay. So just one prior to it, it is greed, ill will, maybe lie or false. So these are all mental conditions because of which we are under stress.
Now, as I said, we feel different levels and different kinds of stress. It is not that everyone is greedy. It is not that everyone is having ill will. It is not that everyone says lies. But there are very small incidences in our day-to-day routine wherein we might be experiencing some or the other factors which will be responsible ultimately in the production of stress in the body. What can be those? Because of possession, because of some accumulation, and because of laziness. Now, till this particular point, you can very well correlate that what is the origin of stress. Now, the box which is left, you will be surprised to note that how deeply Ayurveda thinks. This is not my algorithm. This is not what I think. This is what our ancient scholars in Ayurveda, they have written this 5,000 years ago. So you'll be really surprised to note that overeating is one of the very major factors when we talk about stress. Now, all the audiences which are listening to me right now, you will agree that whenever we are under stress, stress can be beneficial, stress can be having negative effects. Or when we are under extreme happiness and when we are under extreme sorrow, the tendency of the body becomes like this. We try to eat in hurry, right? And we are in a tendency to eat more. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम खाना ज्यादा खा लेते हैं या नहीं खाते, या हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि हमें एक्साइटमेंट भी अगर हमारा वो जो स्ट्रेस कभी कभी एक्साइटमेंट वाला भी होता है और कभी कभी नेगेटिव वाला भी होता है, दोनों ही कंडीशन में हमें पता ही नहीं होता कि हमारी एक्चुअली भोजन की स्थिति चल क्या रही है. तो अगर हम ज्यादा खाना खा रहे हैं, सो दैट विल लीड टू heaviness in the body, then will come tiredness. जब खाना ज्यादा खा लेंगे थकेंगे and then you'll lie down on your bed और इतना आलस आ जाएगा जब कुछ करने का मन नहीं करेगा. जब कुछ करने का मन नहीं करेगा then feeling of accumulation will start. क्या होगा उसमें? मेरे पास पानी भी यहीं बेड के किनारे पे पानी आ जाए, मेरा लैपटॉप मेरे पास आ जाए, मुझे कहीं जाना ना पड़े, मेरे पास अच्छी अच्छी चीजें भी आ जाएं, मैं कहीं ना जाऊं, बस यहीं बैठा रहूं. then feeling of possession will come. अब आपने वो सब ले तो लिया, अब कोई मुझसे ले ना ले. जब ये सारी फीलिंग्स आएंगी then will come these factors like greed, ill will. तब आपको किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा भी सोचना पड़ेगा एंड ये चेन रिएक्शन होती है. फाइनली वी फॉल अंडर स्ट्रेस. तो ये इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज हैज बीन गिवन इन आयुर्वेदा. जब हम इसको अगर हम अब आप रूटीन के काम से देखें कि हमें स्ट्रेस किस चीज का हो रहा है, किसी हाउसवाइफ से पूछो तो बोलती है कि मेरे को मेरे बच्चों की टेंशन है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं. मतलब बहुत सारी चीजें हैं. और उस स्ट्रेस में वो ऐसा तो नहीं है कि उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म नहीं होता, वो भी डिफॉर्म होता है. तो अब आगे मैं आपको आई विल बी टेलिंग यू व्हाई दिस हैपेंस. दिस इज अ पोस्ट लंच सेशन एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीजें जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स, अगेन यू आर फीलिंग ग्रीडी. यू माइट बी फीलिंग ग्रीडी कि मैं ये चाट पकौड़ी भी खा लूं, आई माइट हैव दिस पिज्जा आल्सो, लॉकडाउन चल रहा है, लेट मी ऑर्डर इट फ्रॉम सम जोमैटो और स्विगी, let me have a can of a chilled coke or maybe chaat pakodi, something. So this greed, this is the cause of stress. It is not only of food, it is of so many things. I'll be discussing it, but the eventuality is that what happens now, this is a medical angle. When we are under metabolic stress and these many factors, so the process of some chemical changes takes place in the body, which finally leads to production of some toxins. Eventually we are falling under some or the other category of the diseases. So this is the entire pathogenesis, that how stress is basically hampering our routine. Now coming to the effects of stress. So stress not only affects your mind, it also affects your body, it also affects your emotions, and finally your behavior is also changed, because your family will start saying कि आजकल आप चिड़चिड़े बहुत हो गए,
यू आर वेरी वेरी मच शॉर्ट टेम्पर्ड, सुनते नहीं है बात को, या बहुत जल्दी अपना रिएक्शन देने लगते हैं. व्हाई सो? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अंडर स्ट्रेस. इट कैन बी ऑफ so many reasons where you can read here: worrying, impaired judgment, nightmares. Then your behavior also changes, your appetite for food goes down, you can be having loss of sex drive, you can be drinking more, eating more, your sleep pattern disturbs, eventually restlessness and things like that. So the effect of stress is multidimensional. To continue with it, this slide again shows that mental effects: restlessness, anxiety, motivation goes down, lack of focus, which is very, very common under the age group of 20 to 30. When I see patients falling in this category, they come to me and say कि साहब stress हो रहा है. And this stress is basically because of sometimes, as I said, relationships. This can be because of their studies, this can be because of their family backgrounds, they can be because of their upcoming exams, their projects, maybe whatever. And the physical effects are headaches, हमेशा सिर भारी रहेगा, your body will not be very much fresh, you will be having chest pain, maybe here and there pain, fatigue, and sleep issues and things like that. And eventually, जब आप उस पे काम नहीं करेंगे, when you will not take your stress seriously, but where you will fall under some or the other disease condition. These are just examples of it. It is not that these are the only effects of the stress in your body. Stress can be very harmful. It can be just an eyesight for you, just few examples of some diseases that you can fall under them when you are under constant stress. And the basic problem is that every single problem itself is a gateway for so many problems. For example, I have discussed here obesity. अगर एक इंसान का वजन इतना ज्यादा बढ़ जाए तो वो कैसे दूसरी बीमारियों के प्रति और प्रोन हो जाता है, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. बिकॉज उस एक ओबेसिटी की वजह से उसे डायबिटीज होने का खतरा है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कैंसर, स्लीप एपनिया एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी देयर आफ्टर बिकॉज ऑफ जस्ट वन डिजीज. सो अब आप ये सोचिए हम कहाँ से शुरू हुए थे. हमने ज्यादा खाना खाया, भारीपन हुआ, वो सब मेंटल प्रॉब्लम्स हुई, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस को हमने ज्यादा अगर ध्यान नहीं दिया, उस पर काम नहीं किया, वी वर इग्नोरेंट अबाउट आवर स्ट्रेस, देन फाइनली वी वर प्रोन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हमने एक्सरसाइज नहीं करी एंड इवेंचुअली ओबेसिटी हुआ. ओबेसिटी होने से इतनी सारी प्रॉब्लम होने का हमारे को खतरा हो सकता है. These are again some examples which I come across in my daily day-to-day practice. High blood pressures, and the basic reason for high blood pressure सिर्फ poor habits and stress. And you will be surprised that आजकल 20-20, 25-25 साल के लोग बच्चे जो आते हैं वो they come to me and say कि साहब बीपी बढ़ गया हमारा. मैंने ask बेटा बीपी क्यों बढ़ गया, तो उन्हें छोटी छोटी चीजों की टेंशन हो जाती है. कभी नौकरी की टेंशन है, कभी घर की टेंशन है. तो इतनी छोटी एज ग्रुप में अगर आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आई एम वेरी मच अफ्रेड कि वो अपने आगे आने वाले टाइम फ्रेम में कैसे उसको कोप अप करेंगे. So eventually these are some examples that stress can lead to harmful problems in your body. Now comes the utility of Ayurveda. How Ayurveda can help you. जब आयुर्वेद का जिक्र आता है, whenever Ayurveda is talked about, फर्स्ट थिंग विच आर कम्स इन आवर माइंड इज खान पान बताएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, कुछ खान पान बताएंगे, चूरन चटनी बताएंगे, काढ़े बताएंगे, योग बताएंगे और हो गया आयुर्वेद. फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट 5% ऑफ आयुर्वेद विच जब हम बात करते हैं ना खान पान एंड योग और लाइफस्टाइल, दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ आयुर्वेद. बिकॉज आयुर्वेद हैज अ वास्ट स्कोप ऑफ साइंस. इट प्रिसाइसली टू समराइज अगर मैं इसको बताऊं, इट इज अ प्रमोटिव साइंस जो आपके हेल्थ को प्रमोट कर सकती है, आपको आने वाले रोगों से बचा सकती है, प्रिवेंटिव है ये. एंड फॉर श्योर अगर आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं तो वी हैव डेफिनेटिव क्योर आल्सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं. इट इज प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव. एंड योग या अच्छे से खान पान करना, अच्छा लाइफस्टाइल जीना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद. एज वी आर हैविंग post-COVID times, in fact, Corona is not yet over, but
the effects of corona are multidimensional. I'm sure I'm talking about medicinal part only of it, but corona का जो impact है in our society is medically, technologically, scientifically, environment and socio-economic, political, इतना बड़ा impact है कोरोना का हमारे आज के particular time frame में. And मजे की बात ये है कि आयुर्वेदा कैन डील विद मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स. इतना बढ़िया हमारा साइंस है. अभी तक क्या रहा है, वेन एवर यू फील इल, आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, यू गो टू अ डॉक्टर, ही प्रिस्क्राइब्स यू सर्टेन मेडिसिन, और आप खा खा के दवाई खा खा के आप यू आर फुल ऑफ मेडिसिन. एंड इन वेरी पर्टिकुलर जो फ्रेंड्स मेरे अभी देख रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, एंड हु आर इन 40 to 50 एज ब्रैकेट और मे बी इन द 5th or 6th डेकेड ऑफ लाइफ, जिनका दिन एक गोली खाने बिना शुरू नहीं होता, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, थायराइड की हो, बीपी की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, या किसी की भी हो. तो हम लोग सिर्फ वी आर इन अ हैबिट ऑफ पॉपिंग पिल्स. नाउ दिस इज नॉट जस्ट द रेमेडी ऑफ योर डिजीज. आयुर्वेद की अप्रोच क्या है? आयुर्वेद एक्ट्स ऑन द रिमूवल ऑफ द कॉज. आपने एक बात सुनी होगी ना, आयुर्वेद जड़ से रोगों को खत्म कर देता है. तो वो जड़ से खत्म कैसे करता है? सिर्फ दवाई नहीं खिलाते हम. वी हैव टू वर्क ऑन दीज 4 पैरामीटर्स ऑल्सो, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इज मेंटेन्ड, मेंटल स्टेटस इज मेंटेन्ड, फिजिकल तो हम देखते ही हैं दवाइयों से, जो आपका फिजिकल इंबैलेंस है, वी ट्राई टू केटर दैट ऑल्सो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द इमोशनल क्वोशेंट ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो एड्रेस्ड इन आयुर्वेदा. हाउ? आई विल टेल यू. बिफोर दैट, just a brief of this biofire in our body which is required for digestion of the food. जिसको अपनी अग्नि के बारे में पता है, वो व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए, ज्यादा हेल्दी रहने के लिए, मुझे लगता है कि उसके लिए आसान हो जाता है अगर उसे अपनी अग्नि के बारे में पता है. एंड ये वही चीज है जो आपको भूख लगाती है. अगर आपको भूख लग रही है, दैट मीन्स आपके अंदर ये अग्नि ठीक से काम कर रही है. अगर आपको जलन हो रही है, यू आर फीलिंग एसिडिटी, यू आर फीलिंग लाइक बर्निंग सेंसेशन, तो ये जितना इस अग्नि को होना चाहिए उससे ज्यादा है. देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर अग्नि. क्या हम इस अग्नि को कम कैसे करें? और अगर आपको भूख ही नहीं लगती है, अगर आपको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है, तो वो जो डिजायर्ड लेवल है उससे वो अग्नि थोड़ी कम है. सिमिलरली आजकल कोरोना में इम्यूनिटी की बहुत बात होती है कि इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट, और ये वो, और इम्यूनिटी के नाम पे करोड़ एंड करोड़ रुपीस का मार्केट तैयार हो गया है. बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इम्यूनिटी के नाम पे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या अगर आप वो खाएंगे तो क्या ये गारंटी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? आई हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशंस इनटू इट कि इम्यूनिटी इज नॉट अ कमोडिटी विच कैन बी बॉट फ्रॉम मार्केट. इम्यूनिटी कोई वस्तु नहीं है कि भैया जरा 150 ग्राम इम्यूनिटी दे दो कि मैं अच्छी इम्यूनिटी खा लूं. आयुर्वेद के हिसाब से इम्यूनिटी इज नॉट अ कमोडिटी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लाइफस्टाइल इन योर entire life, and it comprises of these many things. Ayurveda precisely describes very precisely what has to be your daily routine, which is known as swasthvrit. What has to be your day routine, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, सीजनल रिजीम्स क्या होनी चाहिए, गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है, इस मौसम में क्या छोड़ना चाहिए. Then comes diet compatibility, what is beneficial for you, what is harmful for you. And then this very important, this is not khane wala achar, this is behavioral, this is not achar rasayan. So you will think ki koi achar hoga jo rasayan bana ke de rahe honge. It is not that. Achar is the Hindi word because Ayurveda has been originated from our जो वेद हैं, 4 वेद में से अथर्व वेद का पार्ट है. So entire Ayurveda is in Sanskrit. सो ये संस्कृत का वर्ड का आचार का मतलब होता है बिहेवियरल रेजिम्स. जैसे आप हमारे घरों में एक जो भारतवर्ष की संस्कृति है उसमें क्या परंपरा है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूरज उठने से पहले उठना चाहिए, आपको बड़ों को प्रणाम करना चाहिए उठने के बाद, आपको अपना ब्रश वगैरह जो भी सुबह के आपके टॉयलेट हैबिट्स हैं वो सब करना चाहिए. सो दिस इज द एंटायर टाइम फ्रेम के साथ आपकी क्या उसमें लाइफस्टाइल होना चाहिए. एंड लास्टली ये जो पंचकर्मा है, व्हाट इज दिस पंचकर्मा? दिस आर दीस डिटॉक्सिफिकेशन रिजीम्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा. सो इन नटशेल आई वुड लाइक टू अगेन एम्फसाइज कि प्लीज इम्यूनिटी के नाम पे दवाइयां मत फांकते रहिए. अगर सिर्फ दवाइयां फांकने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी
तो ऐसा नहीं होने वाला. यू हैव टू बी वेरी मच सिस्टमैटिक इन योर डे टू डे लाइफस्टाइल टू गेन दैट इम्यूनिटी. अभी नाउ कम्स की हु इज हेल्दी. सम ऑफ यू माइट से कि आई एम कंप्लीटली हेल्दी सर, बट अगर मैं आपको अभी अगर आगे आने वाले स्लाइड्स में कुछ बताऊंगा, देन यू माइट थिंक नो वी आर नॉट हेल्दी, बिकॉज WHO सेज कि हेल्थ इज अ स्टेट वेयर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज मेंटेन्ड एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, विच मीन्स कि सिर्फ रोगों का ना होना, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम हेल्दी, बिकॉज WHO लेटर introduced a very special concept of spiritual health. Now, what is this spiritual health? I'll be telling you in the next slides. So this is the newer approach of holistic wellness. Whenever we are treating a particular patient, we are not only confined to the physical aspect of it. हम उसको सिर्फ ये नहीं देखते कि अगर उसने मुझे बोला पेट में दर्द हो रहा है तो मैं सिर्फ उसको एक गोली लिख दूंगा, I'll prescribe a medicine कि भैया ये तुम्हारे को खाने से ठीक हो जाएगा. मुझे ये भी देखना पड़ेगा उसका इमोशनल कंटेंट, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड लास्टली स्पिरिचुअल एंगल भी देखना पड़ेगा व्हेन आई एम ट्रीटिंग अ पेशेंट, एंड दैट इज अ न्यूअर होलिस्टिक अप्रोच व्हिच आयुर्वेदा हैज सेड 5000 years ago. So this opens the gate of stress management कि अब हम करें क्या. यहां तक तो समझ में आ गया कि इतनी सारी चीजों से हम किसी तरह से स्ट्रेस को मैनेज करते हैं. अब वो करते कैसे हैं? नाउ दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय लेक्चर. इससे पहले मैं आपको एक ऑफ द ट्रैक बात बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस आप ही को है, स्ट्रेस सबको होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं. एंड जस्ट लिविंग एग्जांपल्स, आई एम जस्ट शेयरिंग सम लिविंग एग्जांपल्स जो हमारे ही सोसाइटी के बीच में से हैं. ऑब्वियसली वो आज एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं और उन्होंने भी अपने स्ट्रेस को फाइट किया है. किसी ने अलग तरीका अपनाया, किसी ने अलग तरीका अपनाया, किसी ने कुछ अलग वेज एंड मैकेनिज्म से अपने स्ट्रेस को फाइट किया, एंड वो अपने जो उनका पेरेंट प्रोफेशन था उसमें लौट के आए और पहले जो परफॉर्म कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जांपल व्हिच कम्स टू माय माइंड इज विराट कोहली, द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. जब विराट कोहली इनिशियली खेलने आए थे और जो आज वो खेल रहे हैं, उनका खेलने का स्टाइल और उनकी फिजिकल फिटनेस से मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस व्हिच इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, दे आर वेल नोन बिकॉज ऑब्वियसली क्रिकेट इज अ रिलीजन इन आवर कंट्री. इवन इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ क्रिकेट, देन ऑल्सो यू शुड ट्राई टू सर्च अबाउट विराट कोहलीज ट्रांसफॉर्मेशन कि ऐसा हुआ क्यों, वो पहले क्या खाते थे और अब क्या खाते हैं. सिर्फ डाइट को चेंज करने से एक इंसान का माइंडसेट कैसे बदल गया, this is the transformation journey of Virat Kohli. So he is very successful, he is the having n number of records, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि आने वाले टाइम में वो और भी रिकॉर्ड बनाएंगे. बट व्हाई? बिकॉज ही इज हेल्दी, नॉट ओनली फिजिकली, ही इज हेल्दी मेंटली ऑल्सो, ही इज हेल्दी स्पिरिचुअली ऑल्सो. और सिर्फ क्या चेंज किया, उन्होंने अपना डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो आप उसकी गहराइयों में जाके जरा देखेंगे तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स अभी आगे बताऊंगा, इसमें से बहुत सारी चीजें शायद उन्होंने भी अपनाई हैं. नेक्स्ट नेम कम्स इज दीपिका पादुकोण, अ वेल नोन फिगर इन आवर सोसाइटी. पब्लिकली पेपर्स में सब जगह पे आया कि शी वाज फाइटिंग डिप्रेशन, शी वाज नॉट एबल टू स्लीप वेल, शी वाज हैविंग वेरी रफ टाइम इन हर करियर. लेकिन कुछ उन्होंने भी किया, उन्होंने अपना पॉजिटिविटी को कैसे वो अपने लाइफ में लाई, एंड अगेन she is one of the most endorsed celebrity for the maximum number of brands in India and worldwide. तो कैसे वो इतना सक्सेसफुल हुई, ये भी आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में से उसका कुछ कुछ पार्ट जरूर दिखाई देगा. ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं. अमिताभ बच्चन है, सबको पता है कि जब उन्होंने अपना ABCL जो उनका कंपनी था लॉन्च किया, वो लॉस में गई, उसके बाद वो वापस से बाउंस अप हुए. जब कौन बनेगा करोड़पति का फर्स्ट एपिसोड आया था, कैसे उन्होंने अपने स्ट्रेस को फाइट किया होगा, ये सारी जर्नी उनकी ऑन रिकॉर्ड है. और नो वन कैन मैच द पॉपुलैरिटी ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन. देन युवराज सिंह, हाउ ही फॉट कैंसर एंड ही वाज अंडरगोइंग, मतलब ट्रीटमेंट तो बात की बात है, उस समय कैंसर उनका पीक पे था जब वो सेमीफाइनल का मैच उन्होंने मोहाली में खेला था.
डिस्पाइट ऑफ दैट ही हैज कम वेरी स्ट्रांगली। जब सबने ये कहा कि वो रिटायर हो जाएंगे और टीम से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आके उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बट वेरी मीनिंगफुल, वेरी ऑथेंटिक लाइव एग्जांपल्स, जो हमें बताते हैं कि ये स्ट्रेस जो है सबको होता है। और आपको ये लग रहा होगा कि सर तो प्रवचन दे रहे हैं, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन दोस्तों जब आप करेंगे तभी तो आप इसका रास्ता निकालेंगे। मैं आपको सिर्फ दिशा दे सकता हूँ। सबसे बढ़िया क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, स्पेशली मेरा जो यंगर लॉट ग्रुप मुझे सुन रहा है, या इवन कोई भी एज ब्रैकेट का, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, फिक्र को धुएं में उड़ाने वाला जो गाना है ना देवानंद साहब का, वो सबसे पहले ध्यान में आता है कि फिक्र को धुएं में उड़ा दो। इट इज नॉट लाइक दैट। या खुशी हो तब भी पियो, गम हो तब भी पियो। इट इज नॉट द राइट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस माय फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे साथी इस प्रचलन को फॉलो करते हैं, विच इज मेडिकली नॉट राइट। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप सब इनके हार्मफुल इफेक्ट से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। तो कुछ अगर अच्छा मिल रहा है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड आई एम श्योर अगर आज आपने जो सुन रहे हैं, अगर उसका 10% 15% भी आपने फॉलो किया, टाइम लगेगा। आई नो कि अगर हम आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो उसको इनिशियली फॉलो करने में यू विल हैव टू स्ट्रगल वेरी हार्ड। लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर 15 days, आफ्टर 15 days you will start feeling the transformation in your mind, in your body, in your overall personality, and people around you will start appreciating you कि बॉस क्या क्या कौन सा कैप्सूल खा लिया तुमने। These all effects are very well known to you, but फिर भी हम ये सारे काम करते हैं। अब जब स्ट्रेस की बात आती है तो वरी से हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे विद द यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको और सिगरेट। So this is my humble request. Please do not indulge in any of these. I have much more healthier options for you. Now this is a slide जो मैं अभी आपको जितने सेलिब्रिटी के नाम बताए, अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे शायद इन सेलिब्रिटीज ने भी और हम सबको, we should fight our stress just by focusing on these 3 parameters। और इसको आयुर्वेद में 3 pillars के नाम से बताया गया है। सो इट हैज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस की जिसके ऊपर आयुर्वेद खड़ा है, विच इज डाइट, स्लीप एंड सेलिबेसी। और इन सब के अंदर मैं आपको सिर्फ ज्यादा नहीं 5-5 पॉइंट ही बता रहा हूं, और आई एम श्योर अगर आप इसको फॉलो करेंगे, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप यू वांट टू नोट इट डाउन, दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट थिंग टू बीट योर स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम काम क्या करने वाले हैं, हम अपने तनाव को कम करने वाले हैं। तनाव कैसे कम होगा? हमारे जो बड़े बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छा एक स्लोगन बताया हुआ है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मतलब जैसा आप खाएंगे तो वैसे ही आपके विचार होंगे। तो अच्छा विचार, मतलब हम किसको फाइट कर रहे हैं? स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज अ मेंटल एम्बिग्यूटी है, जो उसको फाइट करने के लिए अच्छा विचार चाहिए। तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? जैसे मैंने बताया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो दैट मीन्स आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अब अच्छे खाने की बात आती है तो अब तो सब लोग ये बोलते हैं कि साहब लॉकडाउन चल रहा है, ना तो कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, घर में ही बना रहे हैं, ताजा बना रहे हैं, तब भी हेल्थ नहीं अच्छी हो रही। तो मैं आपको ये जो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, शायद ये आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे। ये तो तय बात है कि आप बाहर का खाना नहीं खा रहे। हम बाजार से जो भी खरीद के लाते हैं, महंगे से महंगा सामान खरीदते हैं, अच्छे से अच्छा खरीदते हैं, फ्रेश से फ्रेश खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो शायद आपको आपका समाधान यहाँ मिल जाए। जब मैं बोलता हूँ क्वालिटी ऑफ फूड, पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है क्वालिटी। क्वालिटी से क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटी शुड बी होम मेड, इट शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, इट शुड नॉट बी वेरी स्पाइसी, वेरी ऑयली। मतलब आपका खाना बैलेंस्ड होना चाहिए। आयुर्वेद में उसको क्या बोला गया? सुपाच्य। सुपाच्य मतलब जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। वो क्या खाना होगा? वो होगा फ्रेश खाना तो होगा ही, उसके अलावा हरी सब्जियां, जो आपका रूटीन का जो फल, मौसमी फल। अब मौसमी फल की जब बात आती है, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस समय का जो आम होता है वो बहुत डेफिनेटली आम को जो है फलों का राजा बोलते हैं। बट आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि आम हमें दिसंबर में भी मिल सकता है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर नवंबर में आम खाने का मन कर रहा है, तो मैं भी अपने आप को, जैसे फ्रेंड्स के बीच में होता है ना, चल तेरे को आम खिलाता हूं मैं, दिसंबर की ठंड में तुझे दिल्ली का आम खिलाऊंगा। तो इट इज फैक्ट कि आपको आम भी मिलेगा, तरबूज भी मिलेगा ठंड में। सो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए कि जो मौसम का फल है, जो उसका प्राकृतिक समय है,
उसी समय उस खाने को खाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर उसके विपरीत खाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो नुकसान ही पहुंचाएगा। नेक्स्ट कम क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आपको कितना खाना चाहिए। अभी मैंने आपको एक अग्नि वाला एग्जांपल दिया था, अग्नि जो आपके अंदर चल रही है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी भूख है, और आज से एक प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी खाइए, और ये आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ये सब कुछ आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, थोड़ी सी जगह पेट में छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, या हमारी मम्मी या हमारी बहन या हमारे घर में हमको, बेटा 1 रोटी और खा ले, प्लीज 1 और खा लीजिए, अच्छा 1 तो दोस्त के नाम पे खा लो, प्लीज वो सब अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज फाइनली आपको आपके सिस्टम के लिए ना थोड़ा सा अपने सिस्टम को आपको समझना चाहिए। और जब आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी खाइए, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाइए। ये आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्यादा खाना खाने से प्रॉब्लम्स होती हैं, कम खाना खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में ये भी बड़ा ट्रिकी हो गया है आजकल। लोगों ने लॉकडाउन का इतना फायदा उठाया, इतना फायदा उठाया कि नई नई डिशेस बना दी, वो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे पेशेंट्स ने बताया कि नॉनवेज को उन्होंने मलाई में बनाना शुरू किया। जैसे वो मलाई टिक्का होता है, पनीर टिक्का होता है, वैसे ही चिकन टिक्का को भी उन्होंने ग्रेवी किसकी ली, मलाई की ग्रेवी ली, या दूध में उन्होंने नॉनवेज बनाए। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस बहुत हानिकारक होते हैं। ये तो लॉकडाउन की वजह से ऐसा मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन जो रूटीन में हम गड़बड़ करते हैं, रूटीन की जो गलतियां हम करते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में जो लिखा भी हुआ है कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो उसके बाद आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स को। यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिल्क इनटेक और द मिल्क प्रोडक्ट्स इनटेक आफ्टर हैविंग नॉन वेजिटेरियन डाइट। उसके अलावा दही के अंदर नमक खाना, दही के अंदर मिर्च मसाले खाना, ये भी एक गलत कॉम्बिनेशन है। घी और शहद अगर इक्वल क्वांटिटी में खाई जाए तो ये जहर का काम करती है। अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब आयुर्वेद में बकायदा लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे ही पार्टी शार्टी शुरू हो जाएंगी तो आप उसी पार्टी में पकोड़े भी खा रहे होंगे, कचौरी भी खा रहे होंगे, ऊपर से लस्सी भी खाएंगे। जो हम अगर एक रूटीन साइट आप देखिए, आप अपने जब जैसे ही अभी आप पार्टीज में जाएंगे, कितने सारे लोग आपको मिल जाएंगे गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम साथ में खाते हुए, और उसी आकार का उनका बड़ा सा पेट भी होगा। तो दीज आर वो कॉम्बिनेशन है, ये सारे जो वर्जित हैं, जो मना किए गए हैं कि ये सब गर्म ठंडा एक साथ खाना, और वो भी इतनी हाई कैलोरीज डाइट, वो सब होती हैं नुकसान की वजह। नाउ वे ऑफ ईटिंग, खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए। अब इसमें कई सारी थ्योरीज हैं, आप कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ये सुनते हैं, देखते हैं कि 32 बार चबाओ, 28 बार चबाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, पानी को खड़े होके नहीं पीना, बैठ के नहीं पीना। ये सब जो आप जानते हैं वो सब ठीक है, मुझे उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। जो आयुर्वेद में लिखा है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट लिखा है। वे ऑफ ईटिंग का मतलब ये है कि जो सॉलिड खाना है, सॉलिड मतलब रोटी, या जिसको हम यूजुअली जो हम अपनी ब्रेड्स खाते हैं, उसको आपको इतना चबाना है, या जो भी खाने वाली चीज है आपको उसको इतना चबाना है कि वो लिक्विफाई हो जाए और आप उसको पिए। मतलब आपने इतना उसको महीन महीन पीस के आपको अंदर डालना है कि वो लिक्विड की तरह अंदर स्लिप इन करे। और जब आप लिक्विड पी रहे हैं तो वो इतना धीरे धीरे पीना चाहिए जैसे आप खा रहे हो। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और बहुत सिंपल सा आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो आपने अगर बड़े बड़े रोटी के टुकड़े, बड़े बड़े अगर आपने ब्रेड के टुकड़े या सब्जी के टुकड़े अगर आपने अपने अंदर डाले तो क्या होगा, वो जो अग्नि जल रही है वो एकदम ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपको आधे घंटे के बाद गैस, एसिडिटी और ये सब होने लगेगा। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिसनिंग टू मी मस्ट हैव विटनेस्ड जब हवन हो रहा होता है। हवन तो होता हुआ सबने देखा है, अगर किसी ने नहीं भी देखा, आपने आग जलती तो देखी ही होगी सब जगह पे। अब उस आग को अगर आप बढ़ाना चाहते हो या मेंटेन करना चाहते हो तो आपको उसमें धीरे धीरे लकड़ी डालनी पड़ती है। अगर आपने उसमें बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे डाल दिए, बड़े बड़े लकड़ी के लॉग डाल दिए, तो क्या होगा, आग तो बुझेगी
और साथ में होगा बहुत सारा धुआं, अंदर भी वही होता है। वो धुआं क्या है? वो गैस। अगर आपने खाना खाने का टाइम था, आपने उसको मोटे मोटे टुकड़े डाले और वो सब अंदर जाके, पेट के अंदर जाके उसने अग्नि को कर दिया बंद। सिमिलरली पानी के ऊपर भी बात आती है। जब हम पानी पीते हैं तो निकाली बोतल, गटागट 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 पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी। सेम वही चीज होगी। आपने जो अग्नि हमारे अंदर बायोफायर जो जल रही थी, उसके ऊपर इतनी जोर से पानी डाला, वो पूरी ही थोड़ी देर के लिए हो गई बंद। फिर आपको भारीपन, गैस, डकार आना, डिस्कम्फर्ट होना, ये सब होगा। तो वे ऑफ ईटिंग का मतलब ये है कि जो सॉलिड चीज खा रहे हैं उसको तो चबा चबा के इतना खाएं कि आप पीने लगे, और जो पीने वाली चीज है उसको इतना धीरे धीरे खाएं कि आप उसको चबा चबा के खा रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, दैट इज टाइमिंग ऑफ द फूड। हमें खाना कब खाना चाहिए? अब आप, मेरे पास इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं कि कोई सुबह की शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी है, तो वो दिन में सोते हैं, रात में खाना खाते हैं, जगते हैं पूरा रात 2 बजे तक, तो वो ऑफिस में होते हैं। तो मतलब पूरा लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज हो गया है। बट मुझे ऐसा लगता है जो भी आपकी शिफ्ट हो, इररिस्पेक्टिव, नाइट शिफ्ट वाले लोग तो कम ही है ना जो सोसाइटी में है। मेजॉरिटी जो मुझे लोग सुन रहे हैं, दे आर ऑल हैविंग मॉर्निंग शिफ्ट्स ओनली। बट जो मैं बताने जा रहा हूं वो नाइट शिफ्ट वालों पे भी अप्लाई हो सकता है। द फॉर्मूला ऑफ टाइमिंग ऑफ फूड कैन बी वेरी सिंपल, 8 to 8, 8 से 8। क्या है ये 8 से 8? आप इसको लिख लीजिएगा। 8 to 8 इज 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 2 o'clock लंच एंड 8 o'clock डिनर। अब आपकी कोई सी भी शिफ्ट हो, मुझे लगता है आप यहां इसके बीच में तो आप आ ही सकते हैं। 8 बजे नाश्ता कर लीजिए, दोपहर में 2 बजे खाना खा लीजिए, और रात के 8 बजे अपना डिनर कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी परेशानी से बच सकते हैं। और अब आपने क्या किया, इन 5 फॉर्मूलों से क्या किया? हमने थोड़ा सा अपना तनाव का फैक्टर कम कर दिया। क्यों? कैसे? हमने खाने की इम्प्रोवाइजेशन कर ली, हमने खाने को थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लिया। नेक्स्ट कम्स निद्रा। जैसे मैंने वो बताया था, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब नींद इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। आप सबके हाथ में ये जरूर है ना, मोबाइल तो है ही सबके हाथ में, लैपटॉप, डिवाइस, कोई ना कोई तो है ही। जब ये हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप इसको रीस्टार्ट करते हैं। आप इसको, कंप्यूटर होता है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं, यही करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो जो जितना वो अटक गया है, काम नहीं कर रहा है, आप उसको बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं और आप उसको वापस से स्टार्ट करते हैं तो वो चल जाता है। फ्रेंड्स, सेम एप्लीकेशन हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। जब हम थकेंगे तो हमें भी तो आराम चाहिए। आपने कंप्यूटर को तो शट डाउन कर दिया, आप खुद को तो शट डाउन करिए थोड़ी देर के लिए। टाइमिंग ऑफ रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एडल्ट को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड फैक्ट है जो आयुर्वेद 5000 साल पहले बता चुका है। अब आप अगर वो नहीं सोएंगे तो सुबह उठते हैं ना जब, तो बोलते हैं सोया तो था लेकिन मजा नहीं आया, ऐसा लगा कि नींद पूरी नहीं हुई। फिर ऑफिस में जाके ऐसे ऐसे करते रहेंगे, क्लास में बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, अभी भी कर रहे होंगे। हो सकता है अभी पोस्ट लंच सेशन है ना, तो नींद आ रही होगी अभी भी, क्योंकि रात में तो वो मोबाइल चलता है 2 बजे तक। या फैमिली मैन देख रहे होंगे, कईयों ने फैमिली मैन नहीं देखा होगा अभी, है ना। सो 6 से 8 घंटे की नींद जो है ना वो बहुत जरूरी है। और सोने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि जब आप सोने के लिए जाएं तो प्लीज सोएं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल देखते देखते जब तक आंख नहीं झपक रही तब तक मोबाइल में आंख लगा रखी है। 6-7 घंटे सोना है तो अच्छे से सोइए, ताकि आप सुबह फ्रेश होके उठेंगे। टीवी चल रहा है, कान में वो लगा रखा है, आजकल तो वो वायरलेस वाले और आ गए हैं, तो वो भी समझ में नहीं आता कि लगे हैं कि क्या है। अभी तो आपने वो वायरलेस वाला लगा हुआ है, बुढ़ापे में फिर वो कहीं पता चला दूसरी डिवाइस लग जाएगी अगर आप इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे तो, इन कान के उससे, ईयरबड्स क्या बोलते हैं उसको। तो सोने का मतलब है कि अपने डिवाइसेस को दूर रख के सिर्फ सोइए। दूसरी चीज है एक्सर्ट योर बॉडी। अब एक्सर्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम देखते हैं ना, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक तो बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, बैंक में बैठे रहेंगे, या जहां भी उनका दफ्तर है, क्लास है। फिजिकल एक्सर्शन तो होगा ही नहीं। जब तक शरीर थकेगा नहीं तो वो सोएगा नहीं। थकने के लिए क्या जरूरी है? व्यायाम करना जरूरी है। अब व्यायाम करने के लिए, जैसे ही मैं बोलता हूँ व्यायाम, तो खुशी खुशी में कई सारे लोग बोले हाँ सर जिम में पैसे जमा कराए हुए हैं लेकिन जा नहीं पा रहा। जिम जाने का अभी टाइम नहीं है।
कोई बोलेगा हाँ सर जाऊंगा लेकिन कल एग्जाम है, कल के बाद जाऊंगा। फीमेल को बोलूंगा तो सर सुबह ना बच्चों को ऑनलाइन क्लास करानी होती है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है। मतलब ये मेरा जो शुरू होता है ना, सेकंड नंबर का पॉइंट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ई से शुरू हो रहा है, एक्सर्ट शुरू हो रहा है ई से। और मैं बोलता हूँ ई फॉर एफर्ट करो, तो मेरे पास आ जाते हैं ई फॉर एक्सक्यूज। इतने लंबे लंबे एक्सक्यूज आ जाएंगे डेली, आज ये हो रहा है कल वो हो रहा है, लेकिन व्यायाम नहीं होगा। तो दोस्तों 1 घंटा निकालिए अपने लिए, आपके लिए 1 घंटा सुबह, चाहे वॉक, रन, स्विम, योगा, प्राणायाम जो करना है करिए, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा अपने शरीर में से पसीना निकालेंगे तो आपको थकान होगी, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर नींद अच्छी आएगी तो जब आप 1 घंटा अपने से बातें करेंगे ना, एक सुबह का 1 घंटा आप अपने आप को देंगे, तो आपके बहुत सारे तनाव का फैक्टर बिल्कुल अपने आप दूर हो जाएगा, कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिटॉक्स योर बॉडी। अब डिटॉक्स करने के आयुर्वेद में 2 बड़े अच्छे तरीके बताए गए हैं। पहला तो है वीकली फास्टिंग, जिसको बोला गया लंघन चिकित्सा। लंघन मतलब होता है मिनिमाइज द फूड, खाना बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए। जैसे हम फास्ट करते हैं वैसा वाला फास्ट नहीं कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे तो पता चला 1 किलो एप्पल खा लिया, फिर 2 किलो सेब खा लिया, फिर शाम में मैंगो शेक पी लिया। ये फास्टिंग नहीं है, ये तो फास्ट ईटिंग हो गई। ठीक है, तो अपनी बॉडी में आपने जो खाया पिया है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 दिन की फास्टिंग हमें जरूर करनी चाहिए। उससे हमारे जितने भी टॉक्सिन हैं उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और दूसरा तरीका है पंचकर्मा। पंचकर्मा के लिए थोड़ा सा वो टाइमिंग लगता है, और पंचकर्मा में आज आपको इतनी जल्दी नहीं समझा सकता, तो पाठक सर से रिक्वेस्ट करूंगा किसी और दिन हम पंचकर्म की बात करेंगे। आज मैं आपको उसका ब्रीफ जरूर बता दूंगा। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करिए। चौथा पॉइंट मैंने लिखा इंक्रीज द इंड्योरेंस ऑफ योर बॉडी। इंड्योरेंस कैसे बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा अपने आप को मशीन और गैजेट्स के आसपास छोड़ दिया है कि गाड़ी से जाएंगे सब जगह पे, सोसाइटीज में सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं, लिफ्ट से जाएंगे। हमारे घरों में हमेशा एसी लगा हुआ है, एसी ही ऑन रहता है, कूलर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो है जरा सा भी अगर एसी थोड़ा देर के लिए बंद हो गया तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और जो गीजर हमने लगाए हुए हैं, मेरे को ताज्जुब हुआ कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ना गीजर ऑन कर लेते हैं। मैंने बोला इस मौसम में भी कर लेते हो? बोला सुबह सुबह ठंडा पानी आता है ना टंकी में से, तो थोड़ा सा उसको निवाया गर्म कर लेते हैं। तो हमने अपनी बॉडी को कष्ट सहने की आदत ही छोड़वा दी है। तो ये भी क्या करता है, हम क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? तनाव के बारे में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एक फैक्टर से तनाव हो रहा है, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपकी बॉडी की एंड्योरेंस अगर बढ़ेगी तो धीरे 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 आपका ये सारी चीजें मिलके स्ट्रेस के ऊपर काम करेंगी। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को प्रकृति के नजदीक आने दीजिए। थोड़ा सा पसीना आ रहा है तो झेलिए उस पसीने को। पसीना आना अच्छी बात है, टॉक्सिन निकलते हैं उससे। व्यायाम करेंगे, लिफ्ट से जाएंगे थोड़ी देर, अगर एसी नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर आप व्यायाम करने से थोड़ा सा डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगेगा। और 5वां पॉइंट मैंने भी ऊपर भी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब घरों में स्मार्ट टेलीविजन आ गए, एलेक्सा आ गई, स्मार्ट मोबाइल फोन्स आ गए, तमाम हमारे पास गैजेट्स हैं। तो सोचिए कि आपने अपने घर के चारों तरफ, यहाँ तक कि घड़ियां भी हमारी स्मार्ट वॉच आ गई हैं। अब वो जो स्मार्ट वॉच तो आ गई हमारी, लेकिन हम स्मार्ट हुए क्या? अगर इतनी सारी गैजेट्स को इस्तेमाल करने के बाद भी अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तब हम स्मार्ट नहीं है। फिर तो आई एम सॉरी, लेकिन हम बेवकूफ हैं फिर तो, कि अगर हम इतनी गैजेट्स को यूज करके अगर बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसे का फायदा क्या है? फिर हमें इनको यूटिलाइज करना है, इनका गुलाम नहीं बनना है। तो ये आपको देखना चाहिए कि आप कैसे, ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं इसमें से कैसे आप अपनी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। अब जो मैं आपको पंचकर्म बता रहा था, ये सिर्फ आप 5 नाम कुछ होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के जरिया होते हैं दोषों को बाहर निकालने के लिए। जैसा मैंने बोला, इसके लिए मुझे एक अलग लेक्चर चाहिए होता है, ये मैं इस दरमियान आपको नहीं बता सकता। बट फॉर श्योर पंचकर्म हेल्दी व्यक्ति भी करा सकता है, और कोई अगर किसी को कोई परेशानी है तो डेफिनेटली उसको तो लाभ करेगा ही। और ये पंचकर्म हमारे को फायदा कैसे करता है? ठीक उसी तरह जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं और अपनी गाड़ियों की सर्विस कराते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम हर बार गाड़ी थोड़ी बदलते हैं, या मोबाइल बंद हो गया तो मोबाइल फेंक थोड़ी देते हैं, हम उसकी चार्जिंग बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से पंचकर्मा इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारे को फायदा ही देता है। अभी मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, आहार हो गया, निद्रा हो गया, ना लास्ट इज ब्रह्मचर्य। नाउ ब्रह्मचर्य मींस सेलिबेसी। इट ओनली, मतलब कई लोग इसका अगर अंग्रेजी में अनुवाद ढूंढते हैं तो इट डज नॉट ओनली मींस मिनिमल सेक्सुअल एक्ट,
लेकिन उसके अलावा ये 5 चीजें भी उसमें आती हैं। पहला, जैसे मैंने लिखा, परस्यू रियलिस्टिक गोल्स एंड लिमिट योर डिजायर्स। मतलब हमें महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा नहीं होना है। जैसे छोटे बच्चे जो मेरे को सुन रहे हैं, 20 से 30 साल वाले ब्रैकेट में जो मुझे सुन रहे हैं, अपने गोल्स को ऐसा मत बना दीजिए कि वो आप ही के जो दायरा है उससे बाहर हो। बिकॉज अभी आप जिस एज ब्रैकेट में हैं, आपको अपने रियलिस्टिक गोल्स रखने होंगे जो आप पा सकें। क्योंकि अगर आप वहां तक सोचेंगे तो फिर उससे आगे आपकी डिजायर बढ़ने लगेगी। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज मेरे पास सपोज 10,000 का फोन है, लेकिन मेरा दोस्त आज 50,000 का फोन ले आया, तो मेरे 10,000 का फोन की वैल्यू मैंने कम कर दी, यार मेरा फोन अच्छा नहीं है, और मैं मन ही मन सोचता रहा मैं कल 50,000 का फोन लाऊं कैसे, कैसे लाऊं मैं 50,000 का फोन, कहां से आएगा वो 50,000। उसी उधेड़ बुन में, उसी जो ये मेंटल कंफ्यूजन है ना, आप अपना वो एल्गोरिथम को रिवाइज कर लीजिए। आपके ग्रीड आएगा, इल फीलिंग आएगी, कहीं ना कहीं आपको द्वेष, काम, क्रोध, कुछ ना कुछ होगा, एंड देन यू विल फॉल इनटू स्ट्रेस कि मैं अब वो फोन कैसे लूं। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, हमारा गोल और बड़ा हो जाता है कि अब मेरे पास फार्म हाउस होना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब इन सब चीजों का कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आपको गोल लेना है, आप ये गोल लीजिए ना, रोज 1 घंटा व्यायाम करूंगा, दिस इज अ रियलिस्टिक गोल। मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, दिस इज अगेन अ रियलिस्टिक गोल। मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा, दीज आर रियलिस्टिक गोल्स। आप मटीरियलिस्टिक चीजों में गोल्स मत ढूंढिए। अपने आसपास जो आपके लोग आपकी चिंता करते हैं, उनके आसपास गोल ढूंढिए। तो आप, ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, ट्रैप, इस ट्रैप में आने से बचेंगे। सेकेंड इज पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कभी ना मत बोलिए। ये जो इम्पॉसिबल होता है ना, आई एम श्योर सब टेक्नोलॉजिकली साउंड है, बहुत सब आपने देखा होगा, इम्पॉसिबल को भी अगर तोड़ें तो बनता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसी कोई शब्दावली होती ही नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं ना नहीं बोलूंगा। ये सारे थॉट आपको हमेशा आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, ताकि ये जो पॉजिटिविटी है आपकी हर जगह आपको रिफ्लेक्ट होगी, तो डेफिनेटली योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी हाई। अवॉइड क्रिटिसिज्म। हमेशा क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए, और स्पेशली तीसरे व्यक्ति की क्रिटिसिज्म तो कभी नहीं करनी चाहिए जो वहां मौजूद ना हो। जैसे सपोज मैं और पाठक सर अगर बात कर रहे हैं और हमारा कोई तीसरा मित्र है सुनील नाम का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पाठक सर से सुनील की बुराई करता रहूं और फिर पाठक सर को बोलूं सर सुनील को मत बताना। तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो नहीं बताएंगे सुनील को? हो सकता है कल ना बताएं। पाठक सर, आप बहुत अच्छे इंसान है, मैं जस्ट बच्चों को एग्जांपल देने के लिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। It's लेकिन okay, हम sir. अक्सर ये करते हैं कि उसको मत बताइएगा सर, मैं आपको तो बता दे रहा हूं। लेकिन आप खुद सोचिए, जो आप नहीं बचा पाए वो व्यक्ति क्या बचाएगा? वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जरूर आपको वो तीसरे व्यक्ति का तक आपका बात पहुंच ही जाएगी। और मैं मानता हूं ना भी बताएंगे पाठक सर, लेकिन मेरे मन में तो भय रहेगा ना। मेरे मन में हमेशा क्या भय रहेगा, यार पता नहीं उसको बता ना दिया हो, अगर उसको बता दिया तो मेरी उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये अनड्यू स्ट्रेस, क्या क्या फायदा हुआ फिर ऐसी बात का। सो अवॉइड क्रिटिसिज्म। किसी भी प्रकार की चुगली तो करनी ही नहीं है, और अगर वो व्यक्ति वहां खड़ा नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। आपको कुछ बोलना है तो मुंह पे बोलिए, डायरेक्ट बोलिए, उससे कम्युनिकेशन बढ़ता है। कम्युनिकेशन होगा तो डेफिनेटली सोल्यूशन भी आएगा, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं करना। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर। चौथे नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर। जितने लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, थोड़ी देर लेक्चर के बाद सोचिएगा कि तनाव है क्या आपको। एक व्हाइट पेपर लेना, ऐसा सफेद पेपर लेके आपकी प्रायोरिटीज लिखिए और सोचिए कि आपको तनाव है किस चीज का, कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको तनाव दे रही है। कईयों को पता ही नहीं होता कि है प्रॉब्लम क्या। मेरे पास इतने सारे यंग जो बच्चे भी आते हैं, कई बार बड़े लोग भी आते हैं, सर स्ट्रेस हो रहा है। मैं पूछता हूँ भैया हो किस चीज का रहा है स्ट्रेस? उन्हें ही नहीं पता होता किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है। तो एक पेपर पे ना अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि स्ट्रेसर क्या है क्या स्ट्रेस। और जब आप ये करेंगे तो 5वें नंबर पे आएगा, आप अपनी सेंसेस में लौटेंगे। थिंक एंड वर्क ऑन योर सेंसेस। आयुर्वेद में बहुत बढ़िया एक चैप्टर है पूरा, जो हमारे सेंस को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, हमारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, उसको कंट्रोल कैसे करना है। आप ये जो ऊपर जितने पॉइंट लिखे हैं ना, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप उस पर भी अपना आप एक पकड़ मजबूत बना लेंगे। और इसको एक एग्जाम्पल देके मैंने ये बताया है, ये एग्जाम्पल है वो। आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट रावण इज। तो इसके ये जो 10 सिर है ना,
जस्ट रीड ऑल ऑफ दिस, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य, छल और हठ। ये है वो मानसिक दोष जिससे हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड अवॉइड ऑल दिस। अगर ये अवॉइड हो जाएगा तो हम मेंटल पीस पे रहेंगे, मेंटल पीस रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, खाना अच्छा खाएंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा। अगर नहीं होता, सपोज नहीं होता, तो आयुर्वेद में एक स्पेशल क्लास ऑफ मेडिसिन बताई गई है जिसको मेध्य रसायन बोला गया है। मेध्य इज इंटेलेक्ट, और उस पे काम करने वाली दवाई का नाम है मेध्य रसायन। एंड वो कैसे काम करती है? इट इंप्रूव्स द मेंटल हेल्थ, रिवाइटलाइजेज ऑल बॉडी टिश्यूज, बॉडी का कंटूर, विगर एंड मेंटालिटी को इंप्रूव करता है। अब नेचुरल अर्जेस दो प्रकार की होती हैं। आई विल बी बिट क्विक। मेंटल जो मैंने आपको बता दिया, ग्रीफ, ग्रीडीनेस, फियर, एंगर, ईगो एंड ऑल दीज, ये सारी मेंटल अर्जेस हैं, आपको इनसे दूर रहना है। और कुछ फिजियोलॉजिकल अर्जेस होती हैं, ये सब आप जानते हैं, यूरिनेशन, फीसेस, सीमन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, बेल्चिंग, थर्स्ट एक्सेट्रा, जो आप पढ़ सकते हैं। ये दीज अर्जेस शुड नॉट बी सप्रेस्ड इन योर बॉडी। अगर प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, भूख लग रही है तो खाना खाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है मीटिंग में जाना है, उस वजह से हम यूरिनेशन नहीं जा पाते, किसी वजह से हम ऑकवर्ड फील करते हैं कि किसी के सामने डकार ना मार दें, किसी के सामने छींक ना मार दें। सो दे आर वेज टू इट। आप कवर करके रुमाल निकाल के कर सकते हैं, बट डू नॉट होल्ड दीज अर्जेस, बिकॉज इसके मेडिकली थोड़े से दुष्परिणाम होते हैं। अब करा क्या जाए? रिलैक्स करिए, रिजुविनेट करिए आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद में बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जिसको हर्बल अभ्यंग, बॉडी मसाज, शिरोधारा, और इनके फायदे क्या हैं? दे ऑल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, तनाव भी कम होगा, एंड डेफिनेटली आपको फायदा ही मिलेगा। ये सारे प्रोसीजर्स आप जिस भी शहर में मुझे सुन रहे हो, जहां भी आप हैं, आपके आसपास जरूर ये चीजें मौजूद हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको इसका फायदा पता नहीं चलेगा। सो जस्ट रिचार्ज योर सेल्फ जस्ट वंस अ मंथ और एनहांस योर एफिकेसी। हम यहाँ पे पेशेंट्स को ये सारी थेरेपीज के फोटो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये सारी स्पेसिफिक थेरेपीज हैं। जैसे ये आप लास्ट वाली जो थेरेपी देख रहे हैं, समथिंग अराउंड द आईज, बिकॉज अभी स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है। मोस्ट प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम जो अभी आती हैं, परेशानियां, वो आईज के आसपास आती हैं, सिर में दर्द वगैरह। उसके लिए वी डू हैव ट्रीटमेंट्स ऑल्सो जो आपको हेल्प करेंगे टू फाइट योर स्ट्रेस। ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जिसको आयुर्वेद में रसायन बोला जाता है, आई एम श्योर आपने इन सब के नाम जरूर सुने होंगे, बट आई वुड रिक्वेस्ट इनको खाना भी शुरू करिए। जब खाएंगे तो डेफिनेटली इनके पॉजिटिव इफेक्ट आपको नजर आने लगेंगे। आंवला, अश्वगंधा, तुलसी, शतावरी, हल्दी, आजकल ऐसा कोई न्यूज़पेपर का पेज नहीं होता जिसके अंदर ये नाम आपको ना मिले। और फाइनली माय रिक्वेस्ट, अगर आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है तो प्लीज अवॉइड स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स आर नॉट द ओनली रेमेडी फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये सारी चीजें। आयुर्वेद को अपनाइए तो आपको ये स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड डेफिनेटली इट्स अ टाइम फॉर डिटॉक्स। अपनी बॉडी को पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, इफ यू विल गो फॉर एन डिटॉक्स, सो यू विल बी बेनिफिटेड। आप म्यूजिक थेरेपी पे जा सकते हैं टू बीट योर स्ट्रेस। मैंने बताया, व्यायाम करिए, योगा करिए, एंड ये जो बैलेंस डाइट का प्लेट है ना, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिकॉल जो आपके अर्ली चाइल्डहुड स्कूल डेज में आप बैलेंस डाइट पढ़ते थे ना, वो फोटो आपके दिमाग में आनी चाहिए जिसमें एक थाली के अंदर सब कुछ होता था। वैसा ही कुछ आपके खाने में होना चाहिए। आजकल फैशन चल पड़ा है कीटो डाइटिंग का। कीटो डाइट में सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, तो उसके दुष्परिणाम हम आए दिन अपने क्लिनिक में देखते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर डाइटिंग भी करनी है तो न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से डाइटिंग करिए, अपने मन से या गूगल या यूट्यूब या ये सब से सीख के डाइटिंग मत करिए। यू आर गोइंग टू हार्म योर सेल्फ। So live a healthy life, exercise regularly, eat healthy, reduce your stress and drink plenty of water. मजे की बात क्या है, ये हमसे डायरेक्टली आज इस रिलेशन में नहीं है, बट यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेदा इन प्रेजेंट टाइम्स एंड फ्यूचरिस्टिक टाइम्स, जो अभी हम सुन रहे हैं ना कि थर्ड वेव आ सकती है एंड थर्ड वेव कैन बी मोर लीथल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, आवर चिल्ड्रन. So we at Bhagavati Ayurveda, the team of doctors have planned a special project for child. और ये ऐसा नहीं कि चाइल्ड के लिए ही है, चाइल्ड के लिए तो है ही बेनिफिशियल,
ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। सी फॉर च्यवनप्राश, रोज खाएं। हैव हेल्दी हल्दी मिल्क, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी लें। दिस पर्टिकुलर थिंग स्वर्ण प्राशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर किड्स। इम्यूनिटी ड्रॉप्स, इसके बहुत सारे वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। लंग केयर के लिए कोई जरूरत नहीं है सिट्रजीन खाने की, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पैरासीटामोल खाने की, मॉन्टेक्स एलसी खाने की। सिंपल सिंपल सी दवाइयां, जैसे कि ये नाम एक यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है, और भी बहुत सारी हैं। एंड डी फॉर डेली हेल्दी हैबिट्स, जिसके अंदर मास्क और हैंड वॉश तो आपको पता ही है, बट ग्रीन वेजिटेबल्स भी उतनी ही जरूरी हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये भी खाना है। और बच्चों को आंवला का मुरब्बा, जैसे मैंने बताया, इट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी आप खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। एंड दिस ऑल विल फाइट योर स्ट्रेस। तो फाइनली, enjoy एटीट्यूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। ये चार चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, सो यू विल अर्न योर हेल्थ। एंड माय फ्रेंड्स, हेल्थ इज योर वेल्थ। So till we meet next time, these are all my contact details. You can, ऐसे तो पाठक सर हैं ही, but if you want to communicate with us, till then, stay safe, stay healthy. God bless you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. For the session, and Thank you, sir. it was a beautiful and a wonderful Thank you, information, sir. which will help us to combat the current pandemic, because we are everyone is Thank you, worried sir. yes, in the current scenario of the pandemic. So definitely this presentation will help everyone. Now the session is open for the question. If any students want to ask any questions, you can ask to the sir. Yeah, I'm open for discussions, and just one quick word, that these all principles are definitely very much relevant in present pandemic times, but in general also, if you apply them, whether pandemic is there or not, आयुर्वेद के लिए बारे में ये बोला जाता है, आयुर्वेद शाश्वत और अनादि है। हमसे बहुत सालों पहले से आयुर्वेद चला आ रहा है, और हमारे बाद भी आयुर्वेद रहेगा। इसके बीच में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ ही मिलेगा। And anyone having any kind of doubts, I'll be more than happy to solve them. There are any questions from the audience side? सोच रहे होंगे बहुत प्रवचन पहले ही हो गए, अभी फिर शुरू हो जाएंगे। थोड़ा हेजिटेशंस तो होती है स्टूडेंट्स में। तो dear students, if you want to ask questions, I want to ask your doubts, so please ask your question. So no question. Yes, anyone is here? Just unmute yourself. If you're not able to speak, you can type it in the comment box. I can read and then I'll reply. If you don't want to ask, you can just type it down and I'll read it, and I'll try to explain whatever I could.